More chinks in the opposition's armor, and the presidential elections and the cross-voting that was seen during those elections also proving that the opposition's much-touted unity now appears to be in a state of disarray. At least 126 MLAs and 17 MPs defied party lines and cross-voted for President Draupadi Murmu, enabling her historic win. The number is huge, actually 17 MPs and more than 125 MLAs voting in favor of Draupadi Murmu belonging to the opposition camp. It's a big success for the BJP leaders, and they are saying that, they were hoping that some MPs and MLAs would cross vote, but they never imagined that the number will be such big. And in fact, Draupadi Murmu scored 64% of the electoral college votes. It's a bit shorter of what Mr. Ramnath Kovind scored in the 2017. He scored around 66%. So BJP was hoping to get around 70%, but they fell short of that ambition. But nevertheless, the kind of support Draupadi Murmu managed to get, especially in states like Assam, where 25 MLAs have cross-voted from the opposition camp, in Madhya Pradesh, where at least 16 MLAs have cross-voted, in Jharkhand, where it's a home state of Mr. Yashwant Sinha, he managed to get only 9 votes, and around 10 Congress MLAs voted in favor of Draupadi Murmu. In Maharashtra, around 16, in Gujarat, around 10 MLAs, also in Arunachal Pradesh, Meghalaya, and other states, in UP also. So it's a huge number of more than 125 MLAs who have cross-voted in favor of Draupadi Murmu. In fact, there are 3 states, including Andhra Pradesh, where Mr. Sinha did not get any vote at all. And Kerala, where the BJP and the ND have no members, no MLAs at all, they managed to get a single vote from Kerala. So BJP managers are very happy. They are saying that it's a clear indication that how the opposition parties were divided. They give example of West Bengal, where the BJP won 77 MLAs in the last assembly elections and lost 8 MLAs to TMC. They switched over to TMC, but still BJP managed to get 71 votes in West Bengal. So 2 extra votes in West Bengal, where Yashwant Sinha, he was a leader from TMC, he was a presidential candidate for the opposition. So all these figures are being cited by the BJP, saying that it's a clear indication of upcoming 2024 Lok Sabha elections, and also of Gujarat, Himachal, and other state elections, where the many opposition leaders and MLAs, they want to switch over. We are now joined by opposition AIUDF MLA Karimuddin Barbhuiya. Mr. Barbhuiya, जिस दिन चुनाव थे, प्रेसिडेंट इलेक्शन थे, उस दिन आपने जब हमसे बातचीत की, आपने एक एलिगेशन लगाया था कांग्रेस के ऊपर कि लगभग 20 कांग्रेस एमएलएस क्रॉस वोट कर रहे हैं. अब चुनाव के नतीजे निकल गए हैं, उसमें देखा जा रहा है कि 25 ऑपोजिशन एमएलएस असम में उन्होंने क्रॉस वोट किया है. इसमें आपने कहा 20 कांग्रेस कह रही है कि ये एआईयूडीएफ से है. आखिर ऑपोजिशन की यूनिटी टूटी कैसे, और क्या एआईयूडीएफ ने भी क्रॉस वोट किया है या नहीं? देखिए, ये तो एकदम क्लियर पिक्चर है, इसमें लुका छुपा हुआ कोई बात नहीं है. ऑपोजिशन का एक्चुअली 25 नहीं है, जो बीपीएफ पार्टी है, इन लोगों ने फ्लोर कोऑर्डिनेशन बीजेपी के साथ कर लिया आफ्टर इलेक्शन. तो ये अगर छोड़ दिया जाए तीनों को, तो हम लोगों का बाकी नंबर्स हमारा है. कांग्रेस का 25 है, अखिल गोगोई जी का 1 है, मनोरंजन तालुकदार सीपीएम का है, हमारा 15 है. आउट ऑफ 15 2 हौज में है. मतलब इस इलेक्शन में हमारा स्ट्रेंथ 13 था. मैंने इसलिए बोला था कांग्रेस का 20+ एमएलएस बीजेपी का फेवर में वोटिंग कर रहा है, क्योंकि फ्रॉम डे 1 कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो स्टेटमेंट है, सीएलपी का जो स्टेटमेंट है, इलेक्शन का दिन का जो एक्टिविटी है, ये सारा एक साथ किया जाए तो ये पिक्चर क्लियर है. कांग्रेस ने 100% कांग्रेस का 22 एमएलए वोट किया है. ऑलरेडी 3-4 बागी है कांग्रेस का. राज्यसभा इलेक्शन का टाइम में शोकॉज किया, सस्पेंशन किया, ये किया, वो सस्पेंडेड, ऑलमोस्ट टारगेट में 4 है. बाकी 18 कांग्रेस नया विधायक जो इन्होंने इस टाइम द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दिया है. इसका बाद ऐसा हो गया, जसवंत सिन्हा जी यूडीएफ का कैंडिडेट हो गया. कांग्रेस अपने आप में टूटने लगा, डिविजन होने लगा, कोई बात ही नहीं करता है, अपोजिशन का कोई एक्टिविटी नहीं है. भूपेंद्र बोरा जी मतलब ये छोड़ दिया, सीएलपी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर का काउंटर नहीं कर रहा है. ये सारा बातों से एकदम क्लियर हो गया, 100% क्लियर है. और हमारा आदमी देखिए, हमारा कोई एमएलए का पास कोई आदिवासी भूटान नहीं है.
नंबर 1। हमारा एमएलए कोई मन में भी है किसी को वोट करेगा तो कंपल्शन है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगला इलेक्शन इस इलेक्शन का टाइम में इसको जीत के आना है। और बीजेपी के पक्ष में एक बार कोई एमएलए हमारा वोट दिया तो इसका तो पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इस हालत पे खड़ा अगर नेशनली बात करें और अपोजिशन यूनिटी की बात करें तो और एक धक्का लगा है जब कल टीएमसी ने ये कह दिया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वो एब्सटेंड करेंगे। ये तो क्लियर है। देखिए, कांग्रेस का रूल हर पार्टी को, छोटा पार्टी को, बिग ब्रदर कांग्रेस है। बिग ब्रदर का जो एटीट्यूड है, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, बिग ब्रदर का जो नेशनली, आप देखिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ तेजस्वी जी इतना दिन नहीं रहेगा। मैं पर्सनली तेजस्वी जी से बात हुआ था, बोला मेंटल टर्चर करता है यार कांग्रेस में। मैं नेशनल टीवी में बोल रहा हूँ, ममता जी का साथ भी ऐसा हुआ होगा। नेशनल लेवल के कौन शिवसेना चला गया, उद्धव ठाकरे जी अपने जान लगा दिया था। कांग्रेस का रोल क्या था? आज सारा चीज़ देखिए, कांग्रेस को अपना एटीट्यूड छोड़ के राजीव गांधी जी वाला कांग्रेस, इंदिरा जी वाला कांग्रेस, वो जवाहरलाल जी वाला कांग्रेस, वही कांग्रेस को सामने लाना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक कांग्रेस होना चाहिए, प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अच्छा एफिशिएंट लीडर है गौरव गोगोई, इसको दिल्ली में बैठा के रख क्या क्या ममता बनर्जी अब इनडायरेक्टली तृणमूल बीजेपी के पास आ रही है? मेरे को तो लग रहा है ऐसा है। आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस का जो एक्टिविटी है हर विरोधी को बीजेपी का पास दे रहा है। पार्लियामेंट इस राष्ट्रपति इलेक्शन में देखिए ना,